Hello my dear student, in previous lecture video we already started lesson number 12, equation in one variable of standard 8, right? And up to the question number 5 of practice set 12.2 we already solved. Now in this lecture video we will continue with the next question, that is question number 6. Okay, so let us read the question. So some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of a drama in a theater were sold. मतलब 200 रुपये की कुछ टिकट थी और 100 रुपीज़ की कुछ टिकट थी जो कि थिएटर मतलब हमें क्या था, ड्रामा था थिएटर में, वो क्या हो बिकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा बताया गया है कि द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ रुपीज़ 200, मतलब जो टिकट का रेट था 200 वो ज़्यादा बिकी, कितना ज़्यादा बिकी, वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट ऑफ रुपीज़ 100। मतलब 100 रुपीज़ की टिकट बहुत कम बिकी और 200 की टिकट कितनी ज़्यादा बिकी, 100 से 20 मोर बचे। तो हमें नंबर ऑफ टिकट ऑफ रुपीज़ 100 तो हमें पता ही नहीं है, तो कितनी बिकी होगी, कितनी है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैव टू कंसीडर, लेट। ओके, सो व्हाट यू विल राइट, लेट द नंबर ऑफ टिकट्स, let the number of, or we can let the number of rupees 100 tickets sold be x। ठीक है, तो नंबर, तो क्या है, तो नंबर ऑफ रुपीज़ 200 टिकट्स सोल्ड, कितनी ज़्यादा बिकी 200 की, x से 20 मोर, तो x प्लस 20 होगी। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड। हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ रुपीज़ 100 टिकट कितनी बिकी, वो वी डोंट नो, सो दैट फॉर दैट पर्पस आई अज्यूम दैट मे बी एक्स। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 200 टिकट कितनी बिकी, एक्स मीन्स 100 रुपीज़ से ज़्यादा 20 मोर बिकी। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन गिवन, सो बाय गिवन कंडीशन, क्या कमन कंडीशन है कि गिवन कंडीशन क्या है कि द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट वॉज रुपीज़ 37,000। मतलब 100 की जितनी टिकट बिकी और 200 की टिकट, दोनों का एडिशन मिलके वो थिएटर ने कितना पूरा सेलिंग किया था, 37,000 का किया था। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रुपीज़ 100 टिकट वेयर सोल्ड, कितने 100 रुपीज़ वाले टिकट बिके थे। ओके, सो हमें पता है 100 जो टिकट थे 100 रुपीज़ वाले वो एक्स टिकट थे। ठीक है, और जो 200 वाले थे वो दैट इज़ एक्स से ज़्यादा थे, एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू टोटल कितना बिका, 37,000। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 100x प्लस 200x प्लस 200 इंटू 20 दैट इज़ 4,000 इज इक्वल टू 37,000। ओके, now do the addition of the variables, 100 plus 200 that is 300x plus 4,000 is equal to 37,000. Okay, now we have to remove this one here, so subtracting both the side by minus 4,000, so 3,000x plus 4,000 minus 4,000 is equal to 37,000 minus 4,000. What is the reason? Subtracting 4,000 from both sides, so this will cancel. Okay, so what remain, 300x is equal to 37,000 minus 4,000 if you are going to subtract, so you will get 123. Okay, now next step is we have to remove this 300 from x. Okay, so what we have to do, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, सो वी हैव टू डिवाइड, सो देयरफॉर 300x डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू 33,000 डिवाइड बाय 300. व्हाट यू हैव टू डूइंग, डिवाइडिंग 300 to both side. I am writing in shortcut. Okay, so this 300 this can cancel, this 320 is cancel with this one, and this if you are 110, so x is equal to how much, 10, means 100 rupees वाले टिकट कितने बिके, 110 बिके। Have you understood? So what you will write, the number of rupees 100 ticket were sold is,
So what you will write? Therefore, the number of ₹100 tickets were sold is 1110. Have you understood? So now we are going to solve the next question, question number 7. Okay, hope you understand question number 6 well. Okay, now we are going to solve the question number 7. What is the question here? Let us read the question first. Of the 3 consecutive natural numbers, I told you before in the question number we solved 5 question. In that one question is like that only. So 3 consecutive natural numbers कैसे होते हैं? एक को x लो, एक तो next number consecutive we are going to assume x plus 1 and next is x plus 2. Okay, so we have to write here, let the 3 consecutive natural numbers be x, second is x plus 1 and third one is x plus 2 respectively. ठीक है. Now what is the condition given? By given condition, what is there? 5 times the smallest number. अब 5 times the smallest, times means multiplication, right? Times means क्या होता है स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेशन. सो 5 times the smallest number. स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है? x है कि x plus 1 है कि x plus 2 है? x है. तो 5 times means multiplication, x means 5 into x. ठीक है. 5 times the smallest number is a more than 4 times the greater. More than 4 times the greater means 4 times the greater. So क्या लिखा हुआ है? 5 times the smallest number is 9 more. 9 more means plus 9. 9 more than 4 times the greatest number. The 4 times the greatest number means क्या होगा? x plus 2 होगा. ओके स्टूडेंट, क्या होगा? 4 times द ग्रेटेस्ट नंबर, तो x plus 2, ये इक्वेशन आपका बन गया. नाउ ओपन द ब्रैकेट. 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4 2 सा 8 प्लस 9. सो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8 प्लस 9 इज 17. सो नाउ दिस 4x वी कैन ट्रांसफर दिस साइड. सो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 17. So 1x is equal to 17. So we get the what? The consecutive natural number. First number we get. Now we have to find the next number. So x is equal to 7. So x plus 1 कितना होगा? 17 plus 1 that is 18. So x plus 2 कितना होगा? 17 plus 2 that is 19. So last answer what you will write? The 3 consecutive natural numbers are 17, 18 and 19 respectively. Okay, have you understood? Okay, now we are going to solve the next question. Student, we are continuing with the next question. Question number 8. Let us read the question. राजू सोल्ड अ बाईसाइकिल. ठीक है, राजू नाम का जो लड़का था उसने अपनी बाईसाइकिल बेची टू किसको? टू अमित एट 8% प्रॉफिट. मतलब आप राजू ने जब अपनी बाईसाइकिल बेचा किसको? अमित को. तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 8% प्रॉफिट हुआ. ठीक है. ओके, देन क्या क्वेश्चन दिया है? अमित रिपेयर्ड. अब अमित ने जब ले लिया था राजू से तो उसने वो साइकिल को रिपेयर किया, मतलब बनाया. बनाने के बाद इट स्पेंड ₹54. मतलब वो साइकिल रिपेयर करने के लिए उसको कितने रुपीज़ लगा? ₹54 लगे. उसके बाद उसने क्या किया? अमित ने क्या किया? देन ही सोल्ड द बाईसाइकिल टू निखिल. जैसे राजू ने अमित को जब सेल किया था तो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ. तो अमित ने उसको उसको साइकिल को बनाया तो उसको ₹54 लगे. अब उसने क्या किया? अमित ने वो साइकिल फिर से किसको बेच दिया? निखिल को बेच दिया. तो निखिल को कितने रुपीज़ में बेचा? 1134 में, जिसमें उसको कोई भी लॉस भी नहीं हुआ ना तो उसको फ़ायदा भी हुआ. अब आपको फाइंड करना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेज. तो एक्चुअली वो साइकिल की मेन अमाउंट क्या थी? ओके, तो हमें वो अमाउंट नहीं पता है. तो वी हैव टू कंसीडर लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर राजू परचेज इट बी x रुपीज़, है ना. मतलब हमें अज्यूम करना होगा. तो लेट अस अज्यूम दैट. तो व्हाट यू विल राइट द सॉल्यूशन. Okay, so what you will write? Let the
cost price of bicycle for Raju परचेज्ड। राजू ने जो भी मीन्स बाईसाइकिल ख़रीदा हुआ कोई भी प्राइस में, उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इट बी ₹X लिया, ठीक है। अब उसने अब नेक्स्ट कंडीशन में किया था कि राजू ने वो साइकिल को बेचा अमित को 8% प्रॉफिट में, तो दैट वी हैव टू राइट। तो सेकंड कंडीशन क्या थी? राजू सोल्ड हीज बाईसाइकिल, किसको? पहले कंडीशन अमित को बेचा, कितने प्रॉफिट में? ₹8 प्रॉफिट। इट मीन्स दैट 8% प्रॉफिट ऑन कितने रुपीज़ में? X रुपीज़ में, क्योंकि वो एक्चुअली बाईसाइकिल की कितनी कीमत थी वो नहीं पता सबसे पहले, तो X% में, तो X% में मीन्स क्या होगा? X इंटू 8% मीन्स 8/100। ओके, सो कैंसिल इट, 2 4 सा 2 50 सा, देन 2 2 सा, देन 2 25 सा, मीन्स कितना हुआ? X इंटू 2/25, दैट इज 2X/25। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट अब राजू ने सोल्ड किया था, ठीक है, ये जो राजू था उसने सोल्ड किया था द बाईसाइकिल टू अमित, सेलिंग किया था अमित को बाईसाइकिल कितने रुपीज़ में? X + 2X + 25, ठीक है। तो हमें क्या फिर आखिरी में क्या कंडीशन आएगी? राजू सोल्ड दी बाईसाइकिल टू अमित, कितने अमाउंट में? अमाउंट फॉर X, जो कि पता नहीं था, और हमने अभी कैलकुलेट किया 28% प्रॉफिट में, तो 2X/25, ठीक है। तो सॉलिड, सो इट मीन दैट 25X + 2X दैट इज़ 25, देयरफॉर 27/X/25, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है। उसके बाद क्या है कि क्या फाइंड करना था हमें कि अमित ने वो बाईसाइकिल किसको बेचा? उसने निखिल को बेचा, सॉरी अमित ने वो साइकिल को रिपेयर किया। तो ये टोटल अमाउंट जो साइकिल का था, ठीक है, इसने कितना अमाउंट उसमें ऐड किया? साइकिल को रिपेयर किया ₹54, तो वो हमें कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल देखना पड़ेगा। तो क्या आएगा? द कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल फॉर अमित कितना होगा? 27/25X + ₹54, जो कि किसने लगाया था? अमित ने लगाया था रिपेयर करने को। ओके, देन आफ्टर दैट, ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कैलकुलेशन। अब गिवन कंडीशन क्या थी? बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, टोटल अमाउंट 27/25X + 54 इज इक्वल टू कितना? उसने अमित ने सोल्ड किया था बाईसाइकिल टू निखिल 1134। नाउ डू द कैलकुलेशन। Okay, so this 54 we can transfer here, or we can do the subtracting 25x, sorry, x plus 54 minus 54 is equal to 1134 minus 54. तो क्या लिखोगे? subtracting 54 from both sides. So this 54 cancel with this 4, so what will remain here? 27/25 x is equal to, when you are doing the subtraction here, so you will get the answer what? 1080. Okay, now here denominator is what? Here 25, so we have to multiply here. So what we have to do? 27x is equal to 1080, this 25 we have to transfer here this side, so 25. Okay, so 27x is equal to, after doing the multiplication, don't do here multiplication, you can write like same way. Okay, now what you will get here? So like this we will get it, 27x is equal to 1080 multiplied by 25. Okay, then dividing both the side by 27 upon x, because from this x we have to remove this 27, so dividing both the side by 27. So what will be the reason? Dividing 27 to both side, so this will cancel with this
So what you will get, x is equal to, and here we can cancel it. So 27 ones are and 27 fours are, and this 0 here. So 40 multiplied by 25. So x is equal to, if you are going to multiply here, 4 5s are 20, 4 2s are 8 9 10, means 1000 rupees. So what will the cost? So what is the answer? The cost of bicycle for Raju परचेज इज, कितने रुपीज़ में उसने खरीदा था? ₹1000. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. What is the next question here? A cricket player scored 180 runs. ठीक है, जो क्रिकेट प्लेयर्स थे उन्होंने स्कोर किया 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच में. फर्स्ट मैच ने उन्होंने कितने रन स्कोर किया? 180. और जब सेकंड मैच उन्होंने खेला तो उन्होंने कितने रन स्कोर किए? 257 रन किए. ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच. तो थर्ड मैच में उन्होंने कितना स्कोर किए? तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा लेट द क्रिकेटर स्कोर्ड एक्स रन्स इन द थर्ड मैच, है ना. तो व्हाट यू विल राइट, लेट द cricketer scored X run in the third match. ठीक है, तो टोटल रन स्कोर कितना था उनका? द टोटल रन स्कोर्ड इन 3 मैचेस, बिकॉज 3 मैचेस ओवर नो, 3 मैचेस विल बी, पहला 180 था, सेकेंड 270 था, और थर्ड हमने क्या लिया? एक्स लिया. ठीक है, अब क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर ऑफ रन ही स्कोर्ड इन द थर्ड मैच सो डैट द एवरेज ऑफ रन इन द 3 मैचेस बी 230. तो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है कि एवरेज जो है वो तीनों मैचेस का कितना है? 330 दिया. तो आपको लिखना है देयरफॉर द एवरेज ऑफ रन्स इन ऑल 3 मैचेस इज 230. Therefore, total runs in all 3 matches will be, क्या होगा? 3 मैचेस 2 into 3 230. So if you are going to multiply you will get the 690. ठीक है, 3 मैचेस में कितना? 230 into 690. 230 into 3 means 690. You will get the answers. Okay, so by given condition the 3 matches addition plus x is equal to 3 matches run is 690. So now do the addition. 180 plus 270, how much? 0 5 2 3 8. Now what you will get here? 690. Okay, sorry, here what you will get? 257. Okay, here also 257. By mistake I wrote here students. Okay, so you have to correct it. So यहाँ पे क्या मिलेगा? 257. So 7, that is 3 and 437. X is equal to 690. Okay, so plus x is equal to, so this we have to transfer here. So x is equal to 690 minus 437. So if you are going to subtract it you will get the answer 253. Okay, so last answer what you will write? The cricketer scored 253 runs in the third match. Okay, have you understood student? Now we have to solve the last question. Now let us read the question. Sudhir present age is 5 more than the 3 times the age of Viru. ठीक है, वीरू की एज से सुधीर की एज 5 टाइम्स मोर है. तो अनिल एज जो रहेगी वो हाफ ऑफ द सुधीर एज. ठीक है, अनिल की एज जो रहेगी वो सुधीर से कितनी है? हाफ रहेगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वीरू की एज को कंसीडर करना पड़ेगा. लेट, सो वी विल राइट लेट द एज ऑफ वीरू बी एक्स ईयर्स. ठीक है, वीरू की एज एक्स है तो सुधीर की कितनी होगी? देयरफॉर सुधीर एज विल बी हाउ मच? 3x + 5 ईयर्स. ठीक है, अब कंडीशन क्या दी है कि अनिल की एज जो रहेगी वो हाफ रहेगी सुधीर की एज. तो सुधीर की एज 3x + 5, तो अनिल की एज कितनी होगी? 3x + 5, हाफ ऑफ द सुधीर एज. ओके, now
बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है देखो यहाँ से, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज, सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज मीन्स वीरू और सुधीर की है सम, एक्स वीरू की और सुधीर की 3x + 5, रेशियो मीन्स अपॉन द सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरू एज टू 3 times अनिल एज, 3 times मीन्स मल्टीप्लीकेशन टू अनिल एज क्या है 3x + 5/2 ओके इज 5:6 देन फाइंड वेरिएजेस, मतलब इज इक्वल टू 5:6, ये आपकी कंडीशन है। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सॉल्व। सो कैसे कंडीशन में रहता है, x + 3x + 5 3 times एज ऑफ अनिल is equal to 5/6. Now solve it. Okay, so how will I do the addition? 4x + 5/3, 3x + 5/2 is equal to 5/6. So now this we can transfer this side. So 4x + 5 is equal to 5, okay, upon 6 multiplied by 3 in bracket 3x + 5/2. Okay, now this we can cancel, 3 1s are 3 2s are. So what is 4x + 5 is equal to 5/2, 3x + 5/2. Okay, now what you have to do, these two we can multiply. So 4x + 5 is equal to 5, open the bracket, 5 3 is 15, x + 5 is 25, 2 2 is 4. This 4 we can transfer this side. So 4x + 5 is equal to 15x + 25. Now open the 4 4s are 16x, 5 4s are 20, 15x + 25. Now transfer variable in one side. 16x minus 15x is equal to 25 minus 20. So 16 minus 15 is 1x and here 5. Okay, so what is the age of the Viru? So what you will write? The age of Viru is 5 years. Have you understood? So like this way we completed our chapter equation in one variable. Each and every word problem students I solved. If you are finding any difficulty you can ask me. Okay students? Okay, thank you.